अस्सलाम वालेकुम. I'm Khadija. मैं एक छोटा सा introduction दूंगी and then I'm going to hand it over to the moderator, Heather. We're here to talk about something that is reshaping the very foundations of how we teach and how we learn. We're talking about education in the age of artificial intelligence. For the next generation, asking an AI anything will be as normal as breathing. Abhi mere liye, and I'm sure for a lot of you, it still feels a little bit like magic. And it's this gap that our kids, our students, will grow up with tools that feel alien to us, right? That's what will determine what the classroom looks like in the future. So with this transformation comes some very real questions. If knowledge becomes instant, what happens to slower, deeper skills? Skills like critical thinking, originality, reflection, these skills that our education systems and universities around the world are meant to cultivate. If university degrees lose monopoly as the only signal of expertise, how can universities redefine their value? For Pakistan specifically, how do we leapfrog into this new era when so many of our students still lack basic digital access? So will AI become a great equalizer, or will it broaden the divide further? So these aren't abstract debates. They're real questions about how quickly our curricula must change, how our teachers must adopt, and how policymakers must respond, right? And whether our graduates emerge as creators of knowledge or just passive consumers of global AI systems that were trained on someone else's data. So, to help us think through this, we're joined by a panel that brings together 4 essential perspectives. So we have Dr. Hamad Naveed, Pro-Rector of UCP. He's a pioneer in computational biology and AI-driven health solutions. He's going to be giving us the perspective of research and entrepreneurship when it comes to AI. Dr. Athar Osama, who has championed STEM and AI in the classrooms, will be giving us the science and innovation perspective. We have Anam Sadiq with us as well. Anam Sadiq's the co-founder of EdCasa, Pakistan's most watched digital learning platform. I'm hoping she will give us the practice and scale perspective of the conversation. We have Dr. Moeed Yusuf, Vice Chancellor of Beacon House National University. He will lend a policy and leadership perspective when it comes to the conversation. So, Heather, before I hand it off to you, 3 questions to get us going. So if AI erodes the signaling power of degrees, what new value must universities in Pakistan offer students? When answers are instant, how do we protect originality, depth, and the human ability to think critically? And in a world where AI is largely built outside our borders, how do we make sure Pakistan shapes this revolution rather than simply consuming it? So these are our challenges and our opportunities that will redefine the next generation in higher education particularly. With that, Heather, please. Thank you so much, Khatija. A huge round of applause for the inaugural address. We are extremely grateful for all the people who have showed up today. जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर we see that there is a significant decline in enrollment. We see that AI has become the future. हम लोगों ने CV लिखनी हो, हम लोगों ने कुछ करना हो, तो ChatGPT has become our favorite. In times where content and originality were the new machos, ChatGPT has it all. और जब हम देखते हैं कि universities see a significant decline, so what is the future of education in times of AI? Starting off with
Dr. Hamad, sir, how do you see this? Assalamu alaikum. Just to set things in perspective, data-wise, before we start answering or trying to dissect the question, HEC का published data है where there is a decrease in higher education enrollment last year about 13%. और इस साल तकरीबन 20% और कम होगा. We see a similar decline in even college level education. तो जो challenges बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, they are because of two narratives. एक तो ये है कि after the student completes his degree, one of the major objectives of getting that degree is to get a good job. And when there is an economic downturn, या stagnation, there are no new factories coming up, no new jobs coming up, so that sort of triggers the effect to the student कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, at least short term के अंदर. दूसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा जो that we see on social media is कि डिग्री डजेंट मैटर, आप ये स्किल ले लो, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कर लो, एक छोटी सी चीज़ कर लो, and that will start earning you some dollars, and it does start earning you some dollars. But as AI systems become more and more popular and more sort of abundant, ये जो छोटे छोटे काम आप करके ले सकते थे वो automate होते जा रहे हैं. So once, let's say, a graphic designer was getting $50 for one small thing for a 3-day job, that no longer fetches you $50. Either it's gone down to $10 or eventually it will disappear जब सब कुछ आपका AI ही करके देगा. So somebody who has a degree learns lifelong learning के how to adapt. आपको 4 साल की डिग्री में कभी एक तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है, जनरल एजुकेशन की, कभी लीडरशिप की, कभी एंटरप्रेन्योरशिप की, कभी टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, एंड एवरी सेमेस्टर यू अडेप्ट टू समथिंग न्यू. सो बट a small skill, once that finishes, you are again starting from zero and you have absolutely no idea what next skill you want to learn. तो इसलिए ये इस perspective के अंदर, once we see the challenges, how do we set up a narrative that actually tells our kids what university education is about, what would you gain from a university education, how would you plan your future, where you're not afraid of something going, I mean, it's constantly changing, so you are constantly readapting and learning new skills throughout the way, and your future is secure. So we will have to sort of develop this narrative, क्योंकि social media पे skills का narrative बेतहाशा आपको नज़र आएगा, without naming anything, but nobody from the university side actually tells you कि university के 4 साल या 5 साल, depending on कौन सी degree आप कर रहे हैं, professional degree, what does it give you essentially? It's a lifelong learning process that will be with you throughout your life, and that will help you adapt and look at new challenges as they come by. So इसमें AI ने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया, बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं. जो टेक्नोलॉजी की डिफरेंस 10 साल में आता था वो अब 6 महीने में आ रहा है. So you will have to adapt much faster. The universities as such cannot wait for the national curriculum to review their curricula after 4 years. आपको साथ अपना बनाना पड़ेगा, अपना अपडेट करना पड़ेगा, इंक्लूड करने पड़ेंगे ये सारे टूल्स, so that once the kids goes into the market, उसके पास वो चीज़ें हों जो उस वक्त चाहिए. एंड थ्रू आउट दैट साइकिल उसके पास ये स्किल भी हो कि कल को उस टूल की जगह जब नया आए तो उसे वो सीख के आगे लेके चले. So that's what is going to happen going forward. Very well put. Dr. Athar, seeing your background, planning commission, education, foundation for creativity, आपने हर जगह पे you have shared your bit, and now your new program STEM and AI in classroom is a brilliant initiative. So जब हम इस पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम ये देखते हैं कि ये जो लोगों का किसी दौर में था कि STEM जो है वो फ्यूचर नहीं है और पता नहीं आगे क्या होगा. So depending on that international collaboration, how can Pakistan Institute move forward from being knowledge consumer to knowledge producer? क्योंकि ये localized concept है, हम बाहर की चीज़ें जब पाकिस्तान में आए हैं, हमारे साथ जो हुआ आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो ये localization का जो है उसमें how can STEM be more productive? Assalamu alaikum. Thank you very much.
For this question, unfortunately, the challenge is quite grave. हमारे मुल्क में नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो नॉलेज वर्कफोर्स प्रोड्यूस करती हैं, वो नॉलेज वर्कफोर्स जो है वो लो लेवल की नॉलेज आउटपुट प्रोड्यूस करती है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट है, चाहे वो इंजीनियर है, कुछ भी है. वी डोंट नॉर्मली प्रोड्यूस really top of the line workforce. ठीक है, there are always exceptions, but most of the workforce, majority of the workforce that produce is low level knowledge work, and that low level knowledge work AI can very easily do. AI still cannot do high level knowledge work. Even जब ChatGPT launch हुआ था तो OpenAI ने उसके साथ एक study release की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस AI का future of work knowledge के ऊपर क्या impact होगा, और उन्होंने ये कहा था कि it would replace 19% of the tasks of 80% of the workforce and 50% of the tasks of the remaining 19% of the workforce. Now अगर आप 80 और 19 को ऐड करें तो ये 99 बनते हैं. जो 8% है वो अभी भी मिसिंग है, और I think it was an admission on the part of OpenAI कि that 1% will remain indispensable. AI will not be able to replace them. So हम जब अपना STEM प्रोग्राम करते हैं, जब हम बच्चों को हाई एंड की STEM स्किल्स सिखाते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि तुमने ये 1% तुमने बनना है, बिकॉज अगर तुम इस 1% को एस्पायर कर लो तो तुम्हें AI नहीं रिप्लेस कर सकेगा. Now having said that, there is the rest of the 99% of the people as well, and I think for those people we have no other choice but to train our people to use AI effectively. Which means not just STEM students, but also all kinds of professions should know how to use AI so that they can become more productive and more innovative. मेरी कंपनी में एक दो लोग मेरे लिए छोटी मोटी रिसर्च का काम करते हैं. नॉर्मली होता ये है कि मुझे अगले हफ्ते अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं यू नो मंडे को जाके उनको कहता हूँ कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे थोड़ी सी रिसर्च करके दे दो. वेंसडे को मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो पता चलता है कुछ नहीं हुआ अभी तक. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा धक्का लगाना शुरू करता हूँ. फ्राइडे तक जाके कोई चीज़ निकलती है जो मेरे डेस्क पे पहुँचती है, उसको मैं वीकेंड पे देखता हूँ एंड इट्स रियली रबिश. आई हैव टू थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो एंड डू द वर्क माई सेल्फ. नाउ आई डोंट नीड दोज टू पीपल एनी मोर, बिकॉज दैट काइंड ऑफ जॉब AI कैन डू वेरी वेल इन 20 minutes. एंड आई कांट इवन, इफ अगर मैं वो खुद भी करने बैठता, अगर कॉन्स्टेंटली मैं कर रहा होता, तो इट वुड हैव टेकन मी अ वीक टू डू दिस, राइट. तो आई थिंक हमें ये सोचना है कि हम अपने लोगों को इस किस्म का काम, जो कि पहले भी वो कर रहे हैं, हमारे मुल्क में लोग लो लेवल की रिसर्च करते हैं, हमारे मुल्क में लोग कंटेंट बनाते हैं, हमारे मुल्क में लोग सोशल मीडिया यू नो हैंडल्स मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें अब AI बड़े आराम से कर सकता है और उस लेवल तक उससे बेहतर कर सकता है जिस लेवल पे हमारे लोग ये कर रहे हैं. तो हमें अपने लोगों को वाकई इक्विप करना है कि वो AI को यूज़ करें इंटेलिजेंटली और अपना काम जो वो पहले ही कर रहे हैं उसको 4 गुना बेहतर कर सकें और 4 गुना फास्टर कर सकें और अच्छी क्वालिटी का कर सकें, राइट. तो आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव टू सॉल्व एज अ नेशन. हाउ इट विल बी डन, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो. आई ऑल्सो फील, मैं तो आज से नहीं, मैं तो आज से 10 साल पहले से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ शायद बहुत एलीट किस्म के लोगों के लिए रहेंगी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी इसलिए जाना है कि उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाने, नेटवर्क्स बनाने और एक एक्सपीरियंस गेन करना है. लेकिन जिस किस्म की वैल्यूज़ यूनिवर्सिटी डिलीवर कर रही हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर AI देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर दैट काइंड ऑफ वैल्यू. So you have to literally learn how to learn yourself, and that is the thing that every one of us has to learn. And AI actually enables that kind of learning, which is why I think this is the tool that we all have to use. Regardless of what I feel about AI taking over humanity या whatever, हम चाहे AI को अच्छा समझे ना समझे, लेकिन और दुनिया में पता नहीं वो क्या गुल खिलाएगा, लेकिन हमें अपने काम को बेहतर करने के लिए इस टूल को यूज़ करना है. And I think that is what we need to do. Very well put, Dr. Moving forward to ITCA, generative AI is reshaping content creation. पर एक चीज़ है जो कि मतलब एक बहुत खुला सच है कि इस मुल्क में डिजिटल डिवाइड बहुत वायबल है, बहुत विजिबल है. एक्सेस टू इंटरनेट, आजकल तो हम लोगों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो आप इमेजिन करें इस पूरी डिजिटल डिवाइड में पाकिस्तान के डायनामिक्स में, जैसे खतीजा ने सवाल शी इज दिस क्वेश्चन इन द हाउस,
How do you see the future of education with this digital divide? Regardless that CASA has been very significant and have subscribers in millions, how do you see the future of education? I think the future of education, can you hear me? जैसे सामा ने कहा भी कि we all have to find new avenues to learn, and all the kids here, it's so heartening to see such a young burgeoning population of youth coming here to learn and sit here. So I think ye sari, it's not just online education or university education. Platforms like this also kids need to come and soak up education from. But in terms of digital divide, I think there is one, no doubt about that. There are women who don't have access to internet. Rural areas, about 16% of Pakistan doesn't have. There's absolutely no coverage of internet. Then there's security issues due to which there's limited access to internet. However, if you look at the trend, it's very promising. So right now, at present, GSMA data states that about 88% of Pakistan has smartphone penetration. So इसका ये मतलब नहीं है कि हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होगा, उसका मतलब है कि हर फैमिली के हाथ में एक फ़ोन होगा, which is a game changer. It is a huge social equalizer. So I'm not saying कि हमारा जो है कि सारे लोगों के पास access है, but the path that we are on and the number of subscribers that are coming day by day, year on year, makes Pakistan among the top 5 countries जहाँ पे youth is actually using the internet. Now I'll give you a small example from, as she mentioned that I'm a practitioner. So I have about a team of 120 people. So मैं आपको कल का example देती हूँ. Yesterday I was interviewing this lady for a teacher's position. So हमारा qualification होती है, we at least need a BA, right? कोई undergrad तो किया हो ना तो वो पढ़ा सके. So this was a lady, she had a master's degree in her hand in political science. मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, what inclined you towards political science? उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहन ने पढ़ लिया, मेरे फैमिली ने पढ़ लिया, इस तरह, which is not a great answer because honestly you want to be able to say कि this is why, you have to take ownership of what it is that you're trying to do and show vision for it. So मैंने उनको बोला अच्छा, idealism versus realism, very simple thing, आप कौन सा, which ideology do you subscribe to? So I could tell from her answer कि उनके अंदर इस level of analysis नहीं है that she could pick a side. Now right after that call, I had another call with the teacher जो BA enrolled थी. And mind you, I'm not talking about great, like, Lahore, Karachi, Islamabad type cities. We have schools, we work with the Punjab Education Foundation, we have about 50 government schools in extremely remote locations, jahan par sadke bhi nahi hain. So I'm talking about these kind of locations. So the second call was with a lady, bas BA enrolled thi, theek hai na, abhi wo padhna shuru kar rahi thi, aur private candidate thi. So मैंने उनसे टेक्निकल नॉलेज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसी तरह ही थी, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी. बट आई आस्क्ड हर एज पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू प्रोसेस, आई आस्क्ड हर कि आप एक लेसन प्लान ChatGPT के जरिए बनाएं. द वे इन सेकंड शी टर्न अराउंड एंड गिव मी अ ब्रिलियंट लेसन प्लान. नाउ अब आप देखिए, एक मास्टर्स हैं, एक BA enrolled हैं, बट माई डिसीजन वॉज वेरी ऑब्वियस. आई एम गोइंग टू गो विद द BA enrolled बिकॉज वो जो टूल है, दैट्स मेकिंग हर सो मच बेटर एट हर जॉब, राइट? So at the status quo where we are at right now in Pakistan, our graduates aren't being trained to think logically, which is a huge requirement in the age of AI. We have to think, we have to solve problems. And ऐसी बात नहीं है कि jobs हैं ही नहीं, right? Unfortunately, jobs जहाँ पर हैं, वहाँ पर skill gap बहुत ज़्यादा है. And I'm an entrepreneur. I created jobs for these 120 people. Took me 7 years to get to this point, but alhamdulillah, it is there. Right? But innovation आपको चाहिए, आपको बहुत high levels of self-esteem चाहिए to be able to get to that point. So I think we were talking about what is required of universities. I think universities का role is still extremely important. But what they have to do, I don't think skill dispensing is what universities have to do. You can get micro-credentials from Coursera. I'm sure you're all very aware of these amazing platforms. Pakistan is one of the highest, I think it's the second highest user of Coursera in the world, which is amazing. And I'm not surprised, because I think the youth has a great appetite to learn here, and we're all looking to, empower ourselves, make more money. But coming back to the universities, I think we need to change our learning objectives. We need to change the way we test our students, make them think more creatively, make them think more enterprisingly, more entrepreneurially. Because jobs hain, market mein gaps bahut hain. We all live in Pakistan. We all can think of areas jahan pe breakthroughs ki zarurat hai. Right? Companies like CASA have come in. People told us initially, koi bachcha nahi padhta online, bachche dande ke zor pe padhte hain. 8 years later, here I am, sitting with you all. We have 3 million views on our content, 3 billion views on our content, alhamdulillah. So just, that's my perspective. Thank you so much. इसमें मेरा ख्याल है कि कोविड ने बहुत significant role play किया है in changing the perspective. So very well done, जी. Moving on to Dr. Saab, एक तो it's my fan moment, Dr. Saab. We have been a huge fan of you and the brilliant job that you have been doing. Regardless of the portfolios that you have been holding, as an ustad, okay, the question comes in, when most of the people in this panel
बिलीव कि जो एजुकेशन आ रही है उसकी क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो स्किल लेवल है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज है, डिजिटली हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। तो गिवन ये पॉलिसी बैकग्राउंड, हाउ कैन पाकिस्तान अलाइन इट्स रिसर्च प्रायोरिटीज विद नेशनल नीड्स? और नेशनल नीड्स पे आके मसला ये हो जाता है कि वो लोग भी कुछ मतलब मुश्किलात इतनी दी जाती हैं कि चीज़ों को उस जगह से देखना करना मुमकिन नहीं होता। सो द बैरियर्स ऑफ एंट्री आर टू मच। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा देखिए, आई अपोलोजाइज इन एडवांस फॉर माय आंसर, बट हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, सारी बातें दुरुस्त हैं जो हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ आर मेंट टू बी पॉलिशिंग स्कूल्स, दे आर नॉट मेंट टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब आप 12 साल की पाइपलाइन में इतनी करोजन क्रिएट कर दें कि मेजॉरिटी पॉलिश ही ना हो सके, तो ये उस करोडेड प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस सिस्टम का प्रॉब्लम है जिसमें पॉलिसी साइड पे जब तमाम काम खत्म हो जाएं तो फिर तालीम की बारी आती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वेरी वेल पुट सर। सो यू नो, ये बात करना नहीं, ये तो अफसोस की बात है आप लोग तालियां बजा रहे, बट आई एम ग्रेटफुल एनीवेज। देखें, मैं एक स्टेटमेंट पब्लिकली दे चुका हूं एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हीट कम बैक एट मी फॉर दिस, लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तानी रियासत ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया एट सम पॉइंट, लिया होगा 50, 60, 70 साल पहले, कॉन्शियस, कि हमने अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं करना। सो द रिएक्शन ऑब्वियसली वाज कि दिस इज़ वेरी अनफेयर, कॉन्शियस डिसीजन नहीं है मसले। तो मैं आपको सिंपल डेटा पॉइंट दे देता हूँ। Every single penny that Pakistan has allocated towards education in 75 years, अगर वो एक एक पाई भी सही जगह लगती तो हमारा per capita education expenditure would only be above sub-Saharan Africa. So अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं, आपको पता है 5 लगने नहीं है, लेकिन सारे 10 भी लग गए तो नहीं पढ़ा सकेंगे, तो और कॉन्शियस चॉइस क्या होती है? So let's not get into this space of कि AI क्या करेगा. The problem is we are providing degrees, not education. We are not providing learning. Let's be clear about this. ये सारे बैठे हैं, हम हाथ बैठे हैं, क्या आपका प्रॉब्लम 30% स्टूडेंट का गिरना है, या ये प्रॉब्लम है कि उस 70% के लिए भी फैकल्टी ही नहीं है? 101 यूनिवर्सिटी से आज 270 यूनिवर्सिटी है इस मुल्क में। हर MPA MNA ने अपने घर के बाहर एक यूनिवर्सिटी बनवाई है। आई एम सीरियस। यू डोंट हैव फैकल्टी। इफ यू डोंट हैव फैकल्टी, AI भी किसी ने टीच करनी है ना, AI को यूज करना भी किसी ने टीच करना है, AI पे किसी ने ये जहन तो लगाना है कि प्रॉम्प्ट क्या देना है। सो वी हैव वेरी मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में there are 2 tracks. There's an academic track and there's a vocational track. There is no problem with kids not wanting to come to university and learning a skill. No problem. The problem is that whether you're on the university track or whether you're on the vocational track, we have mastered the art of ending up at the lowest end of the value chain. आप पाकिस्तान की जरा एक तारीख देखें, मीडियोक्रेसी इज अल्टीमेटली आवर ऑब्जेक्टिव। जिस चीज में प्रोफेशनलिज्म आया है, पाकिस्तान हैज फॉलन। टेक्सटाइल में 50 साल पहले कपड़ा बनाते थे, आज भी बना रहे हैं। बांग्लादेश, वियतनाम कहां पहुंच गए? ठीक। IT में भी मुझे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम नजर आ रही है। हम बात तो कर रहे हैं AI एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान की IT क्लाइंटेल, अगर आप इंडस्ट्री से बात करें, तो जब इंडिया खत्म हो गया, वियतनाम हो गया, फलां हो गया, जो सबसे नीचे रह गया वो आपके पास आ गया। सो मैं जब स्टूडेंट ट्रेन करके IT की इंडस्ट्री में भेजता हूं, तो IT इंडस्ट्री कहती है मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, ये स्किल चाहिए। तो मैं उनको कहता हूं कि यार मैंने तो सोचना सिखाया है। तो वो कहते हैं ये सोच की जरूरत नहीं, हमारा क्लाइंट तो ये मांग रहा है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी क्यों आए स्टूडेंट? वो सोचे बगैर जाके वो काम करेगा।
जब 5 साल बाद AI टेक ओवर कर लेगी जो हमाद कह रहा है, तो दे वोंट हैव एनीवेयर टू गो। अब सोसाइटी की एवोल्यूशन वहां तक हुई नहीं कि पेरेंट्स को ये समझाया जाए या एजुकेटर्स ये समझ सकें कि यू डोंट वांट किड्स रिमेनिंग एट ए लेवल के कल को AI वो रिमूव करे तो आप में थिंकिंग प्रोसेस ही ना हो, आप सोच ही ना सकें, आप कोई और चीज कर ही ना सकें। सो ये वो चीजें हैं जहां ये नैरेटिव बनाना आसान है कि यूनिवर्सिटी की जरूरत कोई नहीं, कई लोगों को नहीं होगी, बहुत सौ को है, बट फिर यूनिवर्सिटीज आल्सो हैव टू प्रोड्यूस मटेरियल and minds that can be in that 1% that Atar Saab is talking about. And frankly, I personally don't see it. This is fundamentally the problem. अगर आपने mediocrity से बाहर निकलना है तो आपको standards ऊपर करने पड़ेंगे। और ये मैं by the way सिर्फ textile IT की बात नहीं कर रहा, आप किसी चीज स्पोर्ट्स उठा लें, जब तक हॉकी घास पे होती थी पाकिस्तान नंबर 1 था, जब एस्ट्रोटर्फ आई, रॉ स्किल खत्म हुई, पाकिस्तान इज फिनिश्ड। और यही क्रिकेट के साथ अब हो रहा, बिकॉज वी एक्चुअली लिव ऑफ रॉ टैलेंट। ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज एन इक्वलाइजर, ये कहती है कि मैंने आपका रॉ टैलेंट इक्वलाइज कर दिया, अब आप क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर वो नहीं है तो कोई दुनिया की AI हमें नहीं ठीक कर सकेगी, और अगर वो है तो हम AI को सारे यूज कर लेंगे टू राइज। दैट्स वेयर अ यूनिवर्सिटी कम्स इन। इसके बाद अब बंदा क्या बात करे, और ये वो रियासत की बात है जो माँ जैसी रियासत है। कमिंग टू यू डॉक्टर हमाद, ये जितने सवाल हुए, हमारी जितनी पीछे बात हुई, इसमें कुछ पॉइंट्स इस्टेब्लिश हो गए। डॉक्टर अथई ने हमें बताया कि जिस तरह का काम आ रहा था, जिस तरह की लेबर फोर्स है, उसके मसाइल वहाँ पे स्टैंड ऑन करते हैं। कबूतर आंखें बंद करे तो बिल्ली भाग नहीं जाती, सच वहीं पे खड़ा होता है। मूविंग ऑन टू व्हाट Anam has said कि डिजिटल डिवाइड के अलावा, जो कंटेंट क्रिएशन के अलावा है, हमें MA पास गार्ड की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ के इंटरव्यूज में मसाइल आ रहे हैं, हमारे पास टैलेंट टीचर्स अवेलेबल नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स व्हाट डॉक्टर मोहित हैज सेड कि जो जामियात हैं, जो इनका बुनियादी किरदार है, जब आपके पास, और कोई बंदा आज तक स्कूल्स पे ब्लेम करने नहीं गया, मैं 5 साल से जो पैनल्स कर रहा हूँ उनमें हम यूनिवर्सिटीज़ की मिट्टी परीत कर रहे हैं, but in all of this, universities have to give a competitive ground, growth perspective. So how do you see, जब हम entrepreneurship की बात करते हैं, हम innovation की बात करते हैं, and innovation, radical innovation, not incremental innovation. So how do you see the future? जी, so actually, if you look around the world, जिधर भी आप देखेंगे, the basic sort of ground where innovation starts is always a university. ठीक है, अब ये लोग era कि आप जितने भी स्टार्टअप देख लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, चाहे टेक्नोलॉजी के बाहर हों, because university is a place where you can play around and where there are opportunities to test and check what you are doing might work or not. Example में, just let me give you a few examples. लेट्स से पाकिस्तान में इस वक्त हमने आई डोंट नो कितने साल से आज तक सिर्फ पेप्सी, फैंटा और स्प्राइट पी है, 3 ही मॉडल हैं ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हमारे पास। हमने आज तक कुछ नया, कुछ और नहीं बना, क्या हमारा कोई सत्तू शत्तू नहीं चल सकता था मार्केट के अंदर? आपने कहीं दिया ना मार्केट को, वो बाद में बात करें, बट द पॉइंट इज कि वो जो टेस्टिंग ग्राउंड है, वो आई गेस फूड टेक्नोलॉजी के आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहाँ से आ जाना चाहिए था। एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ 20,000 किड्स, आपको वो यूनिवर्सिटी शुड बी द फर्स्ट एम्प्लॉय, फर्स्ट क्लाइंट फॉर दीज स्टार्टअप्स, कि भाई आपके पास 16,000 20,000 बच्चे, आप वहाँ पे टेस्ट करके पता चल जाएगा टेस्ट सही है कि नहीं है, और आपको बाहर के आ जाएगा। एंड देयर इज इनफ सॉर्ट ऑफ मनी देयर कि वो इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है, आप एडमिशन टेस्ट में बच्चे लेने आ रहे हैं, आप उनमें टेस्ट करा लें, टेस्टिंग वहाँ पे हो गई। एक आपने कोई नया इवेंट, इस तरह के इवेंट पे बाहर टेस्टिंग करा ली, आज लगा हुआ है बाहर एक स्टॉल बाय द वे उसका। तो इन सच चीज, तो आई दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इसी तरह एक मेरे पास आके कहता है कि वी कैन ऑप्टिमाइज योर पावर यूजेज। मेरे पास ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके जब नहीं ज़रूरत इन लाइट्स की तो डिम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो मेरी यूनिवर्सिटी को भी तो उसका चाहिए ना। आई वॉन्ट माई पावर कट्स एज वेल कि मेरा, तो उसका सबसे अगेन द फर्स्ट क्लाइंट शुड ऑलवेज बी द यूनिवर्सिटी, अगर सब कुछ उसमें से आ रहा है।
तो इफ़ वी एनेबल दीज स्टार्टअप्स विद इन द यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको नज़र आएगा बाहर फ़ौरन ये बाहर आते हुए। अगर आप उनका पहले कुछ ऑर्डर्स में हाथ पकड़ लेंगे तो देन दे वोंट बी लुकिंग फॉर कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए टू ग्रो, देन दे विल बी शोइंग टेस्ट केसेस कि ये देखें दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, दिस इज सक्सेसफुल ओवर हेयर, देन इट्स अ प्रोडक्शन लेवल थिंग प्रॉब्लम। वो फिर ये नहीं कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। सो आई थिंक इनोवेशंस की बहुत बड़ा स्कोप है और शायद पाकिस्तान में बाकियों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मसले बाकियों से ज़्यादा हैं। जहाँ पे मसले ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होते हैं, सोल्यूशंस के लिए इस तरह की इनोवेशन चाहिए होती हैं। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं की, बहुत सी बाकियों ने सॉल्व की हुई हैं, हमने थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ही लेके आना है। सो आई थिंक सिटिंग इन लाहौर में बार बार फूड की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि खाबा तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, बाकी कुछ चले या ना चले। सो इसलिए आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही इस लेवल पे सोचना शुरू करेंगी कि हाउ डू वी एनेबल दीज किड्स टू डू समथिंग हेयर लोकली, अप्लाई लोकली, तो उससे वो स्किल भी सीखेगा, उससे वो प्लानिंग भी सीखेगा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सीखेगा और आगे किस तरह उसने स्केल करना है वो सब कुछ सीखेगा। सो एंड अगेन ऑफ कोर्स यूज AI टू हेल्प देम मेक दोस मार्केटिंग प्लान्स एंड ऑल दैट, वो सारा एक आसान हो गया और काम करना उससे तो। सो आई फील ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई सी कि ये कुछ ना कुछ आपको और नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स माय टेक ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, मैं छोटा सा सवाल है मासूमाना कि व्हाट्स स्टॉपिंग द यूनिवर्सिटीज? जो आपने बात की है अभी, हम ये बात बहुत ऐसे से सुनते आ रहे हैं और हमने बच्चों को ब्रिलियंट एंड दे हैव मेड ब्रिलियंट थिंग्स, प्रोडक्ट्स, फिर यूनिवर्सिटियां पेपरा के असूल ले आती हैं, फिर कहती हैं जाओ टैक्स में रजिस्टर होके आओ। ये आदमजात कहाँ जाए? नहीं, absolutely correct. I think we have to change, the top management has to change this mindset. We have the top tiers. Enable. Yeah, we have to enable. That's what I'm saying कि हर तरफ से आपको enabling करना पड़ेगा. You cannot get into this bureaucracy and this red tape कि बच्चा ये भी करेगा तो तब ये मिलेगा. I think ये this should be part of their curriculum कि कोई 2-3 चीजें आप नहीं करेंगे तो उसके लिए ये फंड मेरे पास अवेलेबल है. ठीक है, सो दैट हैज नॉट 80% अटेंडेंस के साथ इन चीजों पे भी हमें वाजिबी तवज्जो देनी. 80% अटेंडेंस भी HEC के जरिए आ रही है. अगर एक बच्चा बगैर अटेंडेंस के आपको ए ले सकता है, व्हाई वुड ही वांट टू वेस्ट हिज टाइम सिटिंग इन द क्लास? इसका मतलब उसे वो चीजें आती हैं. बिल्कुल ठीक है. हमने स्कूल की तरह चलाना है और हमने अटेंडेंस लेनी है. एग्जैक्टली. सो मूविंग फॉरवर्ड टू यू डॉक्टर साहब, knowing you from a background of Pakistan Innovation Foundation and our recent interactions तब हुई थी, प्रोडक्ट डिजाइन में आपका बहुत खास शौक था, you were doing brilliant things. हमारा कोई भी प्रोडक्ट स्केल नहीं हो सका. हमने देखा कि पॉलिसी लेवल पे भी हमने देखा कि जो जो चीज़ इस मुल्क में स्केल पे जाती है, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैरियर आ जाता है. When we talk about future education, मुझे वाकई ही ये डर लगता है कि किसी दिन हम ओपन एक चैट GPT पे ना PTA को कहेंगे बंद कर दे. ठीक है? And so what are the barriers that are stopping us from progress when it comes to innovation and entrepreneurship? So okay, I think innovation के तो मसाइल बहुत शदीद हैं और बहुत systemic मसाइल हैं, right? There's not enough money going into innovation. There is not enough brain power going into innovation. There aren't enough skills dealing with innovation. जब हमने पाकिस्तान इनोवेशन फाउंडेशन स्टार्ट किया आज से 12 साल पहले, तो हमें इनिशियली हमने जो किस्म की चीज़ें शुरू की, मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर अट्रैक्टेड टू द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू आर डूइंग. हमने इनोवेशन चैलेंजेस लॉन्च किए कि हम ये मसले हल करना चाहते हैं वगैरह वगैरह. और नॉर्मली 3rd-4th ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होती है कि किसी प्रोजेक्ट में वो घुस जाएँ, उससे उनका कुछ लोगों से मुलाकातें हो जाएं, कोई प्रोजेक्ट बन जाए जिससे उन्होंने ग्रेजुएट करना होता है. बट आफ्टर वर्किंग विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर 3-4 ईयर्स आई रियलाइज्ड कि 2-3 चीज़ें हैं. एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास कुछ ज़्यादा इनोवेशन स्किल्स नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, स्कूल में सिखाई नहीं गई. एक ही तरह से सोचना. हमें बहुत सारे लोग ओरिजिनल आइडियाज़ ला के प्रेजेंट करते थे ऐसे जैसे वो उनका अपना आइडिया है. अगर आप YouTube खोलें तो 2 मिनट में वो आइडिया आपको कहीं से मिल जाता था. तो कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं थी. दूसरी चीज़ जो नहीं थी उनके पास, वो उनके पास कोई डोमेन नॉलेज नहीं थी.
आप किसी डोमेन का मसला हल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप एजुकेशन का मसला हल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का मसला हल कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी में कभी किसी खेत में कदम ही नहीं रखा, तो आप कैसे मसला, आपका प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही गलत होती थी अक्सर। तो डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है इनोवेशन करने के लिए। तीसरी चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये थी कि इनके पास टाइम भी नहीं है। द मोमेंट वो ग्रेजुएट होते थे वो ऐसे भागते थे जैसे उन्होंने पहले किसी चीज़ पे काम किया ही नहीं, राइट। तो और इनोवेशन को वक्त चाहिए, और जिस तरह का हमारा सोशल माहौल है, सोशो इकोनॉमिक हालात हैं, आपको जो ही नौकरी मिलती है आप कहते हैं बस इनोवेशन गई भाड़ में, मैं तो नौकरी करने जा रहा हूँ, राइट। एक ग्रुप को हमने मेरे ख्याल में 10-12 लाख रुपए का इनाम दिया आज से 8-10 साल पहले। उसने कहा नहीं मुझे 50,000 रुपये की नौकरी करनी है, वो 10-12 लाख रुपए गए भाड़ में। तो जब ये हमने नोटिस किया तो मैंने एक्चुअली बड़ा ओपनली कहना शुरू कर दिया कि मैं तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम ही नहीं करना चाहता। जो एंटरप्रेन्योरियल सर्किट्स हैं उसमें मैंने ये कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें अब पाकिस्तान के मसलों का हल समझ में आ गया। असल प्रॉब्लम जो है वो स्कूल में है, तो स्कूल में जाके तुम सही कुछ करोगे, जिस तरह से आपने बात की तो कुछ होगा। मेरा अभी भी ये बिलीफ है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल स्कूल्स में है, और यूनिवर्सिटी को तो हम एज ए सोसाइटी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। थोड़े से लोगों को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे 2-3 मिलियन रुपए की का खर्चा होता है कम से कम। जो NED यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है वो 2 मिलियन रुपए का होता था एक ज़माने में, आज से 5-7 साल पहले। आपके पास 100 मिलियन बच्चा है जो कि 15 साल में नौकरी करने के काबिल हो जाएगा। 100 मिलियन बच्चों को आप 2 मिलियन रुपए पर बच्चा, अगर आपने स्कूल के बाद उनको एक्चुअल स्किल डिलीवर करनी है तो यू आर टॉकिंग अबाउट इम्पॉसिबल नंबर्स। यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये कैलकुलेशन हमने उसको की थी जब डॉलर 100 रुपए का था, अब 300 का हो गया है, राइट। बट वट एवर इट इज, वी डोंट हैव मनी टू बिल्ड 2 डैम्स इन दिस कंट्री। उसके लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ता है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम कहाँ से लाएंगे बच्चों में इन्वेस्ट करने के लिए? द ओनली थिंग दैट वी कैन मेक वर्क इज द स्कूल। Schools exist and at least 70% kids go to school. The rest of the 30% can also be made to go to school if we start a double shift. ठीक है ना? अगर आप 12वीं जमात में बच्चे को इतनी तालीम दे दें कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, वो उसको यूज़ करके कोई इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सिटीजन बन जाए, तो आपके मसाइल का हल है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में आपके मसाइल का हल नहीं है। ठीक है, थोड़े से बच्चे उसमें से, अमेरिका में अगर 100 बच्चा स्कूल कंप्लीट करता है तो 25 बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, वो भी एट डिफरेंट एजेस, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, यू नो नॉट इमीडिएटली। अच्छा, जहाँ तक स्कूल की ताल्लुक है तो अगेन आई थिंक आई केम आउट एज अ वेरी somebody who was very pro AI. I'm not that pro AI, but what we need to really teach our kids is critical thinking. This is the only thing. This is what AI, this is also what you need to actually use AI effectively. AI ने स्किल का प्रीमियम ख़त्म नहीं कर दिया। एक चीज़ शुरू में आई थी जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन आ गया जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, 4-4 लाख डॉलर की नौकरियाँ मिलेंगी। ठीक है, वो एक छोटा सा बबल था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है एट द एंड ऑफ द डे? थोड़ा सा उसमें टूल का पार्ट है कि ये टूल ऐसे काम करता है, इससे ऐसे सवाल पूछोगे तो ये ऐसे जवाब देगा। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपने एक सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, आपने उस जवाब को पढ़ा, आपने उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट सवाल पूछा, फिर आपने उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट सवाल पूछा, until you reach your right answer, right? So this act of taking an answer, analyzing it, asking a more intelligent question, taking an answer, analyzing it, this is what we think is critical thinking. तो अगर ये हमने बच्चों को सिखा दिया तो फिर चैट GPT को बड़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टूल को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, राइट? और वो अपनी जॉब में 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, 3 से 4 गुना। And that is what I think we need to teach at school level ideally, but if not at university level, to whoever gets into the university, and that is what will determine whether we can make use of this revolution or not. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। क्रिटिकल थिंकिंग से मैं दुआ हेड कासा पे आता हूँ। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो तालीम और तरबियत बोथ कम्स टुगेदर, हैंड इन हैंड, और फिर वो उस्ताद से ज़्यादा अपने साथ वाले बच्चे से सीख रहा होता है। पूरा कल्चर, नेचर होता है वहाँ पे। जब हम डिजिटल स्कूल्स की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि आप घर बैठ के डिग्रियाँ करें, स्किल्स एजुकेशन है, वो क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों में कहाँ से आएगी? वो जो मुआशरे में रहने की बुनियादी इकाई है वो कहाँ से आएगी? That's a great question.
I think यहाँ पर what we've been talking about is mostly information. Information और knowledge are two different things. जहाँ पे skill की बात आती है, that's information. Very quick, fast moving, technology change हो रही है, you get the information where and when you need it. Then there's knowledge and there's wisdom. All three of them are not the same. They're all very, very different things. So जो schooling की बात है, school में they don't only give you information, they form you as a human. जहाँ पे आपकी तरबियत की बात आती है. अब let's talk about how the digital space has this problem. आप तो नहीं देख रहे, मैं as when I teach online or my teachers teach online, अगर synchronous है जहाँ पे live content है, तो चलें फिर भी वहाँ पर आपकी बात हो रही है, I can throw out questions to my users etc. But वहाँ पे human centered design बहुत important role play करता है. This is a critical thing that I think incubators, accelerators वगैरह need to start teaching this skill कि human centered design क्या है. अब जैसे हमने इरकासा की ऐप जब बनाई, so I'm a graduate of Carnegie Mellon, वहाँ पे incubation की ideation शुरू हुई, जहाँ पे human centered design का मैंने course किया. फिर I went to an accelerator program that was funded by another INGO. वहाँ पे human centered design के principles adopt करके 800 households का survey करके ये app बनी है. Because education is a relationship. Even when you take it digitally, आपने as a teacher relationship student से create करना है. Nobody learns जहाँ पे उसको teacher पसंद नहीं आती. And that's a huge problem again in our education space, in the K-12 space, जहाँ पे teacher feels कि बस उनको ज़रूरी नहीं है बच्चे के साथ friendly तरीके से बात करना या एक what we found which was shocking, sir, was कि the student wants a teacher who is respectful to them. तो a lot of people actually online when they come, they're willing to ask questions because उनको लगता है कि उनको यहाँ पे झाड़ नहीं पड़ेगी. So many students इतना झिझकते हैं क्लास में हाथ खड़ा करने से पहले कि यार लोग क्या सोचेंगे, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा. I should not ask this question. I should just keep it to myself. I see a lot of people nodding, right? So that's something that we build in these tools ताकि people feel empowered to be able to ask these questions. It is much harder to do this online. There is no doubt about it than to do it in person. मगर the cost of doing it in person and the cost of doing it in online is significantly different, right? And I just want to mention one more thing on the incubator space. Since CASA was also incubated at LUMS, मैं एक चीज़ कहूँगी, the gap that I felt, जो अब LUMS at least address कर रहा है, was that there were no practitioners. ठीक है, EdTech उस वक्त इतना ज़्यादा common नहीं था, मगर education space के mentors भी नहीं थे. Right? मैंने 10 साल उससे पहले एजुकेशन में काम किया हुआ था. I had somewhat domain knowledge. मगर फंड रेजिंग कैसे करते हैं, I had no idea. पिच डेक कैसे बनाते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. हाउ मैं जाके बाकी रीजनल एडटेक्स की देख रही हूँ कि वो कैसे करते हैं. तो द डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट, इन्वेस्टर माइंडसेट इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक प्रैक्टिशनर्स जो हैं जनरली इन IT रिलेटेड फील्ड्स, इवन इन जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं, दे आर नॉट फैकल्टी, दे आर नॉट इंस्ट्रक्टर्स. We need to have these people also, be faculty of universities. Very well put. अब मसला ये है कि यहाँ पे भी I still remember कि आज से 8 साल पहले I was heading an incubator in Pakistan. तो मुझे पता चला कि चूंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए तो प्रोफेसर साहब आएंगे, और उनको इंक्यूबेटर जो पता था वो था ही. और सो यहाँ पे वो अलमिए हैं जो कि हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आते हैं प्रैक्टिशनर लेवल पे, और हमने इंक्यूबेटर्स का इस मुल्क में वही किया जो डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स के साथ आजकल हो गया. सो यू हैव वेरी राइटली पुट. मूविंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू यू डॉक्टर साहब, वी नीड टू रीथिंक दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. और मेरा ये ख्याल है कि शायद हम जहाँ बात करें वहाँ पे सिर्फ बात हो सकती है, क्योंकि ये फैसले जहाँ से आते हैं वहाँ पे अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि ये वाला कोर्स मैंडेटरी हो गया, अब ये पढ़ाओ, ये वाला फैसला ऐसे होगा. एंड वी सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज दैट हैव बिकम इररिलेवेंट. लैंग्वेजेस हैव बिकम इररिलेवेंट. आई वाज सो ग्लैड टू नो कि डॉक्टर साहब की बेटी को बीकन हाउस पंजाबी सिखा रहा है, नहीं तो ये डिग्री से इररिलेवेंट हो गई थी. BS इंग्लिश में दाखिले नहीं आते, और उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं. तो विद AI कमिंग इन, हाउ आर वी गोइंग टू रीइमेजिनेशन डिग्रीज एंड एजुकेशन? वैसे जहाँ फैसले होते हैं वहाँ भी सिर्फ बातें ही होती हैं, सो उसकी फिक्र ना करें. बट बिफोर आई आंसर इन अ लाइटर वे, इफ आई मे, हमाद ने अभी अटेंडेंस की बात की है, तो हमारी एक माय कॉलीग फैकल्टी मेंबर, बहुत बड़ा नाम है अपने शोबे में, वो बाहर से आए तो उन्होंने BNU ज्वाइन कर ली, पुरानी बात है, और वो 8 बजे उन्होंने अपनी क्लास सुबह थी उनकी, तो वो गए पहले दिन, तो पहले वो सिस्टम आया और उसने कहा जी कि आप वो अटेंडेंस ले लें, उसके बाद पढ़ाना शुरू करें. तो उन्होंने जो भी किया, बाद में आके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको उन्होंने कहा, इजाज़ ये बताएं, मैं क्लास लेने गया हूँ तो वहाँ वो अटेंडेंस, तो ये यूनिवर्सिटी है कि स्कूल है, यहाँ क्या ताल्लुक है अटेंडेंस का, इसको ख़त्म करें, मेरी क्लास में अटेंडेंस नहीं होगी.
खत्म हो गई। तो अगली क्लास के बाद वापस आए, उन्होंने कहा इजाज़ अटेंडेंस वापस लगा दें। उन्होंने कहा सर क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं सिर्फ अकेला खुद ही क्लास में था। सो मे बी देयर आर गुड रीजंस फॉर दिस। अच्छा देखें, डिग्रीज का फ्यूचर और ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है ना, इसका भी एक स्ट्रक्चरल रीज़न है। कभी आपने ये सोचा, HEC को बड़ा हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहते हैं, मैं खुद PHEC के बोर्ड पे हूँ, तो हम सब ये कहते हैं जो बड़े वो रेड टेप है, ये बता दिया ये करना है वो नहीं करना। बट द पीपल हु आर सिटिंग इन कमिटीज एंड मेकिंग दीज डिसीजंस आर ऑल फैकल्टी मेंबर्स, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट तो 1 2 3 को ही हैं, बाकी तो सारे वो। तो क्यों चेंज नहीं आती? चेंज इसलिए नहीं आती कि पाकिस्तान का हर प्रोटोकॉल, हर पॉलिसी, हर सिस्टम एक प्रेमिस पे बना हुआ है, और वो प्रेमिस है कि unless you force people to do the right thing, they will do the wrong thing. It is built, all bureaucratic structures negativity रोकने के लिए बने हुए हैं। दुनिया के पॉलिसी मॉडल्स 2 ही हैं, एक है इंसेंटिवाइजेशन और एक है कंट्रोल। इंसेंटिवाइजेशन ये कहता है कि आप किसी को पॉजिटिव चीज का इंसेंटिव दें तो वो जो अच्छा है वो कर लेगा, जो नहीं अच्छा वो नहीं करेगा। कंट्रोल मैकेनिज्म कहता है कि सारों ने गलत काम करना है, लाल बत्ती तोड़नी है, इसलिए इशारे पे पुलिस वाला खड़ा कर दो ताकि चलान हो जाए। तो जिसने कभी भी लाल बत्ती नहीं तोड़नी वो फंस जाता है, क्योंकि उसको भी रोक के पूछा जाता है कि आपने कल तो नहीं तोड़ी थी। सो द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू क्रिएट 270 यूनिवर्सिटीज where the capacity is for 100, 170 will do wrong things because they don't have faculty, उनका नंबर पूरा नहीं है, पेपर पूरा नहीं। तो वहां से जो वो 100 हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, उन पे भी वो कदगन लग जाती। दैट्स द फंडामेंटल इशू। ठीक, सो ये चेंज नहीं आएगी। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हु सिटिंग देयर, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ आवर साइकी व्हिच सेज वी आर नॉट गोइंग टू लेट आवर कंट्रोल गो। अगर आप यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमस कर दें जेन्युइनली, तो उस 270 में से 100 बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और वो 1% आपको प्रोड्यूस कर देंगी, जिसकी बात अतर साहब कर रहे हैं। बाकी 170 को आपको बंद करना पड़ेगा। वहां पे आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पॉलिटिसाइज्ड है, वहां पे कोई और रीजंस हैं, जो भी हो। सो मैं अभी रिसेंटली किसी को कह रहा था, कसूर में के करीब एक नई यूनिवर्सिटी बनी। सो ऐसे जी फैकल्टी कहाँ से आई? क्या करेंगे, कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, व्हाई कांट यू हैव 100, 50, 20 नाइस बसेस जो सुबह वहां से चलें और स्टूडेंट को यहां ले आए। कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, कोई BNU में पढ़े, फैकल्टी मौजूद है, बेहतर तालीम मिलेगी और अपने घर चले जाए। व्हाई नॉट? बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, किसी का होगा। फिर इसी तरह आप किसी और सूबे में देखें। सो ये प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि किसी ने कहा जी हमने इस पे कदगन लगा देनी है। ये एक डीपर साइकी का हमारा मसला है जहां हम कंट्रोल रखते हैं। वरना जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनको इनोवेट करने दें, वो आपको कर देंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डिग्रीज का फ्यूचर जो है, डिग्रीज आर मेड बाय अस, वी कैन चेंज देम व्हेनेवर। कभी हमें किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री बंद नहीं कर सकते या चला नहीं सकते। उसमें किसी HEC का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जब दिल करना है आप बंद कर दें, और जब चलानी है आप चला लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर BNU आज एक डिग्री बंद कर देता है, तो मैं आपको फिलॉसफी का एग्जाम्पल देता हूँ। फिलॉसफी में लोग बहुत कम आते हैं अब स्टूडेंट्स। सो द ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स इज आप डिग्री बंद कर दें। The question is, if you are not teaching philosophy to your society and your youth, where is that critical thinking going to come from? History में नहीं आते लोग, अब नहीं आते तो हिस्ट्री का शोबा बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। तरीका क्या है? और यहाँ पे I would implore universities rather than the bureaucracy. अगर फर्ज करें फिलॉसफी में पूरे लाहौर में 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और 12 प्रोग्राम्स हैं, तो 12 के 12 नहीं चल सकते, जाहिर बात है, किसी में 1 है, किसी में 1.5 है। तो who is stopping universities कि वो इकट्ठे बैठे और वो कहें कि जी फिलॉसफी का शोबा सिर्फ और सिर्फ UCP में होगा। जो स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ना चाहता है उसको आपकी यूनिवर्सिटी उधर भेज दे, सॉरी आई अपोलोजाइज, और हिस्ट्री का शोबा BNU में होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लें, हमें आज पता है कि जो 20%, 30% इनरोलमेंट गिर रही है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं गिर रही, वो स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स में गिर रही है। जिस यूनिवर्सिटी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है उस डिसिप्लिन की, उनको कहें जी सारे आप ले लें, आप पढ़ाएं, इट्स द सेम सोसाइटी। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने कंपीट करना है, मेरा एक स्टूडेंट कम, आपका ज्यादा, मेरे 2 ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। सो डिग्रीज अगर यही रही जो आज हैं,
दैट मीन्स कि हम सिर्फ बिजनेसेस पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे नहीं कर रहे। डिग्रीज आपको कंसोलिडेट करनी पड़ेंगी, नॉमेनक्लेचर्स चेंज करने पड़ेंगे, और यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाला काम आप कर लें, ये वाला काम मैं कर लें। देन यू विल एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। Collaboration is the future, not competition. So very brief final segment. Before you get to the final segment, just एक comment सबके लिए। अभी तक हमने जब सब बात की वो बड़ी common sense की बात थी, right? I felt everything was very very common sense, but common sense is not very common. That's the issue. इसी में ही मैं just एक बहन से बात कर रहा था, वो ब्रिस्बेन में होती हैं। So she got an email. She's a very big company. तो वहाँ पे एक पूरी company wide email गई, Please stop uploading your data to ChatGPT. ChatGPT पे ये सिर्फ पाकिस्तान का ग्लूमी हम बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो ChatGPT पे कंपनी का डाटा क्या कहते हैं, इसकी मुझे एनालिसिस करके दिखा दो, मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड कर दो, और ChatGPT कर देता है। भाई वो डेटा कहाँ जाता है? लेकिन वो डाटा जा रहा होता है। सो आई थिंक जो इश्यूज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, इसमें से बहुत से इश्यूज बाहर भी हैं। जस्ट अगर हम थोड़ा सा मिल के साथ चलें, जिस तरह मोहित साहब ने कहा है, तो दे आर नॉट बिग इश्यूज एंड वी शुड बी एबल टू हैंडल देम। तो द पॉइंट बीइंग कि मिल के चलें और आगे की तरफ देखें इन अ पॉजिटिव मैनर, बिकॉज कोई और हमारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेगा। इट इज़ अस हु आर गोइंग टू सॉल्व देम, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज वेयर वी आर सिटिंग टुगेदर sort of give us this opportunity कि आगे की तरफ कैसे करना है। जी बैक। So आपने सवाल पूछे तो अहमद भाई, when we say future education the AI, और फिर हम ये देखते हैं कि अब जैसे इस मुल्क में किसी दौर में MBA की हवा चली और बहुत चली, आजकल CS की हवा, और ये अब हर जगह हम देखते हैं कि यूके की यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स आर द न्यू हॉट थिंग इन द टाउन। How do you see future, very briefly, how do you see future of education in these times? Are we going for graduate global programs? Are we going for hybrid programs? या वही होगा कि लर्निंग सेंटर बने होंगे और डिग्रियां वहां से आएंगी? So अभी पॉइंट आउट किया मोहित साहब ने भी, अथर ने भी थोड़ा सा पॉइंट आउट किया कि किस तरह को हमें वो 1% चाहिए जो ज़्यादा अच्छा है, एंड फैकल्टी नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें हमने। आई थिंक जो प्रोग्राम्स अभी बाहर के लर्निंग सेंटर्स यहाँ पे बने हुए ना, दे आर नॉट सॉल्विंग एनी ऑफ दिस, नाइदर आर दे प्रोड्यूसिंग 1%, नाइदर आर दे सॉल्विंग योर फैकल्टी प्रॉब्लम। The only way forward that I see these programs working is when you do it together, when you have fly-in faculty from them, when your student guaranteed goes for exposure. ये नहीं कि यहाँ पे बैठे UK की डिग्री मिल गई, उसका क्या फ़ायदा है? What sort of that? It's still a degree where you had the same exposure, you had the same teachers. What difference? वो हमारे मशहूर हैं चीफ मिनिस्टर पुराने, डिग्री होती है, तो वो वाली बात हो जानी है। सो द ओनली वे इज टू डेवलप प्रोग्राम्स वेयर यू हैव एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी, वेयर यू हैव गारंटीड एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट, विच वुड मीन कि वो जब फैकल्टी यहाँ पे आएगी, आपकी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। जब आपका स्टूडेंट बाहर जाएगा, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखेगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखेगा, दुनिया किधर जा रही है वो चीज़ देखेगा, वापस लेके आएगा वो वाली चीज़ें। सो अनलेस यू हैव जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स, ये बाहर वाले प्रोग्राम्स, एक्सटर्नल डिग्रीज वाला काम नहीं चलेगा, इट विल रिमेन द सेम। तो दैट्स व्हाट आई सी के, एंड दैट विल केटर टू दिस अदर्स फैक्ट कि कम लोग हायर एजुकेशन करेंगे, तो ये जो कर रहे होंगे उनको इस तरह का एक्सपोजर भी चाहिए होगा कि ग्लोबली क्या हो रहा है। सो आई थिंक दिस मैचेस टू ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स कि आपका जब भी ग्लोबल प्रोग्राम हो, उसमें बच्चे की बाहर के एक्सपोजर हो, बाहर के फैकल्टी यहाँ पे आए, एंड दैट इज हाउ यू डू इट। Very well put. Coming to you, Dr. Athar, आप चांदबाग के साथ हमने बड़ा brilliant, we have seen you doing brilliant job when it came to STEM-X, अभी एग्जाम्स के साथ हुआ है। हमें ये भी पता है कि जो फनल है उसमें एरोजन बहुत ज़्यादा आ गई है, बट वन थिंग दैट यूनिवर्सिटीज मस्ट डू इन योर ओपिनियन। तो जो जिन डिसिप्लिन्स का आपने जिक्र किया कि जो ख़त्म हो रहे हैं, मेरे ख्याल में उन डिसिप्लिन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। History, philosophy, these are languages, these are the disciplines that will be required the most in the age of AI. Not computer science. Computer science, average computer scientist, अब ये लोगों को पता चलेगा जो अभी graduate करेंगे अगले 3-4-5 साल में, because these jobs are going and people have already started firing people. ठीक है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो वक्त के साथ आएगी, वो ये है कि personalized learning सीखनी पड़ेगी।
there is a behavioral problem in adopting personalized learning because अभी तक हमें यही सिखाया गया है शुरू से कि जब तक क्लास में नहीं जाओगे, टीचर सर पे डंडा नहीं मारेगा, एग्जाम नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं सीखेंगे. With AI, more or less, and this will get better, with AI that constraint of going to the classroom and sitting in front of the teacher has gone away. You can learn on your own, provided you have the behavioral incentive to learn on your own. That doesn't exist so far, which is why a lot of people don't learn, which is why, और AI का जो real benefit education में आएगा वो personalized learning में ही आएगा, वो किसी और चीज़ में नहीं आएगा. वो टीचर लेसन प्लान नहीं बना सकता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. पर्सनलाइज जब तक स्टूडेंट AI के सामने बैठ के खुद सीखना नहीं सीखेगा. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. AI ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इनेबल कर दी हैं और कुछ चीज़ें नहीं इनेबल की हैं, राइट. तो माई ओल्डेस्ट सन इज़ इन द 8th grade. मैं उसको होमवर्क करने के लिए AI नहीं यूज़ करने देता. वो अक्सर मुझसे आगे पूछता है कि फ़लाँ चीज़ का होमवर्क मिला है, मैं यूज़ कर लूँ. मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें ये होमवर्क मिला है, इसका मतलब एक सर्टन स्किल तुम्हें सिखाई जा रही है, वो स्किल सीखो पहले, राइट. लेकिन कुछ चीज़ों में मैं उसको कहता हूँ कि तुम AI यूज़ करो, राइट. सो फॉर एग्जांपल ही इज़ रिसेंटली एक्सप्रेस टू मी कि मुझे फार्मूला 1 का स्ट्रैटेजिस्ट बनना है. तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा फार्मूला, अब वो 13 साल का बच्चा है, वो क्या कर सकता है फार्मूला 1 का स्ट्रैटेजिस्ट बनने के लिए? कुछ भी नहीं कर सकता, राइट. मैं चाहूँ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता. लेकिन मैंने कहा तुम AI के सामने जाके बैठो और उससे कहो कि मुझे बीजिंग के सर्किट, फार्मूला 1 सर्किट का ऑप्टिमल लैप टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ. उसने उसको AI से सवाल पूछा कि उसने सर्किट को 15 हिस्सों में डिवाइड किया, उसका ऑप्टिमल लैप टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर दिया. मैंने कहा अब इसमें एक्सेलरेशन डालो, अब इसमें ये डालो, अब वो डालो. ये सारी चीज़ें हम पढ़े लिखे PhD लोग भी अगर करना चाहें ना तो नहीं कर सकते. वो 13 साल का बच्चा ये कर रहा है और वो इस प्रोसेस के थ्रू कुछ सीख रहा है. सो AI ने एक चीज़ एनेबल कर दी है, विच इज़ के फॉर हिज माइंड एट हिज एज थिंग्स दैट ही कुडंट डू, ही इज़ नाउ एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ AI. एंड दैट्स वेयर this is personalized learning, this is self learning. If we can get our kids to learn this way, then I think we can use, and that's where this is personalized learning, this is self learning. If we can get our kids to learn this way, then I think we can use AI very effectively and we can make a lot of progress. For this, again, there is a certain sort of basic understanding, knowledge that we need to have. वो उसकी डोमेन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक, उसको मुझसे ज़्यादा फार्मूला 1 के मुतालिक पता है, ठीक है ना. तो वो जब फार्मूला 1 में कोई जवाब देता है तो ही कैन गेट इट मच फास्टर देन आई डू. सो देयर इज सर्टन डोमेन नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड, बट देन अ लॉट ऑफ थिंग्स AI कैन एनेबल. और ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग में ही असल ब्रेक थ्रू आएगा. एंड आई थिंक इफ वी कैन टीच आवर किड्स हाउ टू डू दिस, एंड मे बी इन द फ्यूचर व्हेन द किड्स हु आर नाउ 1-2 year old, जो मेरा छोटी बेटी है, वो अगर मुझे कॉन्स्टेंटली AI के साथ इंटरेक्ट करते देख रही है और अपने भाइयों को देख रही है, तो शायद वो बचपन से इसी तरह से सीखने की ट्रेन होके आए. लेकिन जो अभी बच्चे दरमियान की स्टेजों में है, यूनिवर्सिटी में है या स्कूल में है, जिन्होंने नहीं सीखा ये, उनके लिए सीखना बहुत मुश्किल है. और यही हमने सिखाना है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू डू सेल्फ लर्निंग. वेरी 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 ब्रिलियंट इनपुट, थैंक यू डॉक्टर साहब. अब कुछ चीज़ें जो इंसान का ज़ाती हुस्न है, जिसमें एम्पथी आती है, काइंडनेस आती है, क्रिएटिविटी आती है. व्हेन वी सी डिजिटल स्किल्स, AI, एट द एंड ऑफ द डे वो क्रिएटिविटी का जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो लैक करता है. सो हाउ डू यू सी दिस ओरिजिनलिटी, कंटेंट क्रिएशन इन टाइम्स ऑफ AI? हाउ डू यू सी दैट? I think it's more important than ever before. जो आप लोग 1% हम सारे बात कर रहे हैं of the job shrinking and going to the top percent, और फिर inequality आप देखें कितनी आएगी, right? The people who have that 1% of the skill, what will they be able to earn? वो 1% skill क्या है? वो creativity है, ठीक है? And this is, I think we're being very hard on the youth. I want to say 2 things about this. पहले, I think our youth is very hardworking. I think we don't give them enough credit. अगर Coursera के second highest number of users come from Pakistan, at CASA पे we have 600,000 users. Nobody told them कि जी डंडे के जोर पे इसको डाउनलोड करो. Nobody gave them a bat or ball or said कि जी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे. None of that. People downloaded it. On average, one user when he comes or she comes, signs up on the app, at least 26 questions करके जाते हैं. Nobody's asked them to do that question. They go through that journey. 2.2 million questions उस app के ऊपर answer हुए in the last 4 years. So I think our youth is incredibly geared to learn, but we have to meet them where they're at. अगर वो TikTok पर हैं, आप TikTok पे पढ़ाएं. अगर वो digital platforms पे हैं, आप वहाँ पढ़ाएं.
But I don't think it's fair for us to say कि जी इनको बुलाना पड़ेगा तो फिर ये आएंगे और फिर पढ़ेंगे. So many people here are sitting. I think आप लोगों को खुद ही चलकर आ जाएं हैं आप. So I do believe, I'm a very optimistic educator. I do believe our youth has the appetite for learning. The last thing I wanted to say, which I can't remember now, so I'll just let it be. On a very lighter note, TikTok से निकाल के लाए हैं हम. तो काफी ज़्यादा TikTok में Sir, याद आ गया. एक बता दूं. I have a challenge. I have a challenge for the youth. ठीक है. आप लोग किताबें पढ़ते हैं. आपकी हर बुक के अंदर K-12 एजुकेशन में मैं काम करती हूँ. हर बुक के पहले चैप्टर के ऊपर लिखा होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव. मैंने 22 एजुकेशन बोर्ड्स के पाकिस्तान में लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैप किए हैं. क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है? आइडेंटिफाई, रिमेंबर, लर्न. देयर इज नेवर टिल दिस डे हैव आई सीन द वर्ड क्रिएट. अब आप लोग अपने आप को चैलेंज दें. जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ें, उससे खुद चैलेंज निकालें क्रिएट, कि मैं ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव से क्या चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ. फोटोसिंथेसिस आप पढ़ लें, हाउ कैन यू क्रिएट, सी दिस हैपन, क्रिएट अ मॉडल जहाँ पर ये चीज़ हो रही है. सो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव खुद दें. बाय द टाइम होपफुली गवर्नमेंट में भी ये पॉलिसी आएगी जहाँ पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंप्रूव करेंगे, टेस्टिंग सिस्टम को इंप्रूव करेंगे. क्रिएटिविटी तब आएगी ना जब हमें आदत होगी टू थिंक क्रिएटिवली. हमारा टेस्ट हमारी मेमोरी को टेस्ट करता है. हमारा कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं, हमारे टेस्टिंग में प्रॉब्लम है. तो आप लोग खुद करें, आप अपने आप को वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट करें और उसको टेस्ट आउट करें. Very well put. The final question of the session, ji, to our very favorite Dr. Mohit. So when you see कि AI is shaping the future, अब हम मतलब जो मर्जी कहें, ये सच है. And we see that it is built outside the borders. हम कभी जितने लोग AI पे डेटा डालते हैं, कभी AI से पूछें, AI इनको बताएगी कि उसको इनके बारे में क्या प्रोफाइलिंग का पता है, क्योंकि सारा डेटा मैप हुआ है. So in all these times, what's the way forward? We cannot deny it. It's the future. Collaboration is the future. We have very less amount of people, 1%, and that is also naive, which are not critical with thinkers. What's the way forward? देखिए, पहले तो one has to understand, I am a social scientist by training, तो I discount any conversation जहाँ पे human society का element आप नहीं लाते. So no AI, no machine will ever take over human beings because society will react to create that space. ठीक, ये 1899 का एक आर्टिकल है, जब ये फैक्स तब थी, टेलेक्स बाद में आई, तो somebody wrote कि ये अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, वो फैक्स का जिक्र हो रहा था, इतनी पेस ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी कि लोगों के पास फ्री टाइम बहुत होगा. पहले वो जाते थे कहीं घोड़े पे बैठ के कहीं पहुँचाए, अब तो है नहीं. तो आप पार्क्स बना दें, बिकॉज वरना लोग बोर होंगे, घरों में बैठेंगे नहीं. It wasn't realized that human beings will create other things to do, and the Protestant work ethic will then say कि अगर आपने 20 घंटे काम किया है तो आप ज़्यादा मेहनती हैं, 14 किया है तो आप कम मेहनती हैं, which is a totally unnatural concept. आज भी who do you say जी ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, कैसे ये सोता ही नहीं है, 40 साल की उम्र पे फौत हो जाएगा काम कर करके, लेकिन सोता नहीं. well done. So I think human societies will react, वो अपनी space खुद create करेंगे. Human anthropology is a very important factor. हाँ, जो success का measure है वो change होता जाएगा. तो अगर आपने कुछ करना है, तो the only thing you need to do is let universities do what they are meant to do rather than giving degrees. Let schools do what they are meant to do. Automatically you will find people. Pakistan का, South Asia का human DNA is very good when it comes to learning and right? research. It's just about grooming that space कि आप आगे चले जाएं. वो कर लें तो सब ठीक हो जाएगा. वो नहीं करेंगे तो AI or no AI, the world will not wait for you. Simple as that. With this, Ji, the final note is that with AI or without AI, circumstances and dynamics वही रहेंगे. Final note is कि इंसान का जहन जो है वो at the end of the day would survive. And जितनी भी चीज़ें जितने भी यश से आती हैं, जब भी टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्निज्म आता है, ऑर्गेनिक नेचर reclaims the space. और इसके लिए द फाइनल नोटिस के दरिया के तजावुज का बुरा मानने वालों, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा था तेरे पास. So everything would eventually come back to its nature. So creativity and human intent has no alternative. We thank you all for being our brilliant audience, and thank you to the panelists.
डॉक्टर साहब एसी बहुत ज्यादा था, आई रियलाइज बहुत ज्यादा था, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच जी।